everyone, welcome to my channel, My Tribe. And today's session will be on reproductive behavior and sexual selection. So let's proceed. So reproductive behavior related to production of offspring, and it's all include aspects from the establishment of mating system, courtship, sexual behavior, and parturition of the young ones. रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रिलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग में, किस टाइप का होगा, कैसे होगा, जैसे कि मैटिंग सिस्टम होना चाहिए, कोर्टशिप, सेक्सुअल बिहेवियर, पार्चुरेशन ऑफ यंग वंस, ये सब इंक्लूड करता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में. Why the reproductive behavior is important? ये important क्यों है environment के लिए? Having major contribution to the evolutionary success of the organism as it creates variation via genetic recombination, which ensure continuity of the various species on the earth and increase the number of species in the ecosystem. In day-to-day life of ecosystem, the environment condition is changing day by day. So the organism must to be adapt the new environmental condition, as which call from the Darwin concept, that is natural selection must important. So the reproductive behavior is important for the evolutionary process to change in their genetic recombination, so that variation will become, and that variation will lead to the natural selection for the future perspective. So from related of the reproductive behavior, there is a theorem, Fisherman fundamental theorem, which state the principle the rate of change in fitness by natural selection. The principle of rate of change in fitness by natural selection is equal to the adaptive genetic variation in the population. So as we talk that the change in fitness by natural selection, जितना ज़्यादा natural selection आएगा, fitness में जितना change आएगा, वो उसके adaptive हो जाएगा genetic variation in the population. जितना fitness change होगा, उतना ज़्यादा genetic variation आएगा. As this graph represent, जितना ज़्यादा यहाँ fitness increase हो रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पे character भी increase हो रहा है. Okay? ये है large mutation and this is small mutation. So there are 4 stages of reproductive behavior, that is mate choice, courtship, mating and parental care. So the partner should have this 4 qualities must include. Okay, so if the 4 qualities are better, then it will be a better partner. Mate choice and courtship. Lake mating. A mating system in which several males congregate at one location during the mating season, forming small individual territory and competing with each other for mate by giving elaborate visuals and vocal display. लेक मेटिंग एक ऐसा टाइप ऑफ मेटिंग सिस्टम है जहां पर एक लोकेशन में काफी सारे मेल आके कंट्रीब्यूट करते हैं अपना विजुअल और वोकल डिस्प्ले को, ताकि फीमेल्स उनमें से अट्रैक्ट हो सके और उन लोगों को चूज कर सके. As the diagram represents how these birds are elaborating their vocal display to attract the females. Harem. Harem is an animal group consisting of 1 or 2 males, a number of females and their offspring. The dominant male drives other males and female to maintain the groups. मतलब हैरम में ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जहाँ पर एक मेल या 2 मेल्स होते हैं और काफी सारे फीमेल्स और देयर ऑप्शन के साथ रहते हैं. उस ग्रुप को कहा जाता है हैरम. उनमें से एक डोमिनेंट मेल होता है या फिर 2 डोमिनेंट मेल्स होते हैं जो बाकी सारे मेल्स और फीमेल को ड्राइव करके रखते हैं, मतलब उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं. एज द जेनिटल फेज ग्रो दे लीव द ग्रुप एंड द रोम इंडिविजुअल्स. मतलब वो लोग जो उनके जो बेबी हैं, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग मेल्स हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो डोमिनेंट मेल्स हैं उन लोग उनके ग्रुप को छोड़ के अकेले रहने लगते हैं. द डोमिनेंट मेल्स मेट विद फीमेल्स एज दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव एंड ड्राइव्स अप कॉम्पिटिटर्स. मतलब जो डोमिनेंट मेल है वो बाकी सारे फीमेल्स के साथ मेटिंग करता है और उन लोग को सेक्सुअली एक्टिव रखता है, ताकि वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ मतलब कम्पीट कर सके. मतलब जो उसमें जो डोमिनेंट एलियंस है, जो कि उसमें
जो फिटनेस है वो सब उनके ऑफस्प्रिंग में आ सके और बाकी सारे मेल्स को वो मेटिंग करने नहीं देता है. Incoming males that achieve dominant status may commit infanticide. Incoming males that achieve dominant status may commit. So this picture represents a picture of harem of elephant snail, where we can see the dominant male clearly, and others are the number of females with their group. Next is Bateman principle, the idea that males experience greater variance in reproductive success than females. In other words, single ova is more costly to produce than a single sperm. In other words, we can say more powerful males have many offsprings and take away opportunity from other males, which leads to a larger variance in reproductive success. मतलब एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताओ तो कॉलेज में मतलब एक हैंडसम लड़का है और बाकी सब लड़के काफी सारे ऑर्डिनरी है. तो काफी सारे लड़कियों का मन जो रहता है और जो नजर रहता है, आंखें रहती है, वो सिर्फ हैंडसम लड़का पे रहती है और ऑर्डिनरी लड़का पे नहीं रहती है. इस तरीके से जो ऑर्डिनरी मेल से उन लोग की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है उस हैंडसम लड़के की वजह से. नेक्स्ट इज कोर्टशिप. In previous slide we have discussed the Bateman principle, where the males experience greater reproductive success than females. So उन लोग मेल्स जो होते हैं अपना रिप्रोडक्टिव सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए कोर्टशिप का सहारा लेते हैं. कोर्टशिप मीन्स a courtship is a set of display behavior in which a animal attempts to attract a mate and exhibit their desire to copulate. For this example, this picture represent a courtship of peacock spider. तो एक peacock spider किस तरीके से डांस कर रहा है, अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को डिस्प्ले कर रहा है ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके. दिस टाइप ऑफ विजुअल अट्रैक्शन टाइप ऑफ डांसेस एंड वोकल डिस्प्ले टाइप्स हरकतें जो होती है उस चीज को कोर्टशिप कहते हैं. नेक्स्ट इज रन अवे सिलेक्शन. Selection of males by female based on plumage, color and courtship display rather than parenting skill or materials benefits such as nest or turtle. ये सबसे सिंपल वर्ड में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो एक जो फीमेल्स होती हैं उन लोग कोर्टशिप के बेसिस पे मेल को एज ए पार्टनर उनको एक्सेप्ट करती है. मीन्स उन लोग लड़का को ये नहीं देखती है कि वो अच्छा है या बुरा है, नेक दिल का है या नहीं, बस उन लोग का शकल सूरत देख के, हैंडसमनेस को देख के, टीएसएलआर एंड द बाइक को देख के उन लोग एज ए अपना बॉयफ्रेंड उन लोग को स्वीकार कर लेती हैं. और उन लोग का जो दिल है वो जो नेक हृदय का है या नहीं, वो चीज को उन लोग नहीं देखती. सो दैट इज इन सिंपल लैंग्वेज रन अवे सिलेक्शन. ओके, ये आप देख सकते हैं ये टेबल में एक चिड़िया है जिसका पूंछ ज्यादा लंबा नहीं है और एक चिड़िया है जिसका लॉन्ग टेल है. जो एंड द शॉर्ट टेल वाज चीप एंड द लॉन्ग टेल इज कॉस्टली. मे भी हो सकता है कि जो लॉन्ग टेल वाला बर्ड है वो ज्यादा ना होता हो और जो छोटा टेल वाला बर्ड है वो ऑर्डिनरी होता हो. तो जो जेनेटिक क्वालिटी है अगर गुड रहता है तो अलाइव है, एंड अगर बैड हो तो भी वो अलाइव रहता है, और अगर गुड जेनेटिक क्वालिटी है तो अलाइव रहता है, लेकिन बैड क्वालिटी अगर आ गया तो डेथ हो जाता है. मतलब एक तरफ से देखो तो जो छोटा तेल वाला बर्ड है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज ए पार्टनर चूज करने के लिए, और जो लॉन्ग टेल वाला है वो नहीं है. मतलब अगर एक फीमेल उससे मेटिंग करती है लॉन्ग टेल वाले से और अगर गलती से भी मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में बैड क्वालिटी जेनेटिक क्वालिटी आ गया तो उसके ऑप्शन भी बैड क्वालिटीज के होंगे. सो तो फीमेल से जो लॉन्ग टेल है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू द शॉर्ट टेल, एंड दिस इज द रन अवे सिलेक्शन. नेक्स्ट इज मैटिंग, सेक्सुअल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, and the types of mating behavior is promiscuous, monogamous and polygamous. First is promiscuous. In this case male and female met randomly, so they met randomly. It's very common, no pair bond formation
no long-term bonding, male do not care for their offspring and nothing more than a set of gene. So इन लोग के बीच में जो लोग प्रोमिसियस बिहेवियर मतलब प्रोमिसियस मैटिंग बिहेवियर को एक्वायर करते हैं उन लोग के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं रहता, सिर्फ एक सेट ऑफ जीन का लालच रहता है और कुछ नहीं। उन लोग को बस एक दूसरे से सिर्फ एक सेट ऑफ जीन चाहिए और कुछ भी उन लोग के बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता, सिर्फ रैंडम मैटिंग रहता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है उस चीज को कि ये जो मेल्स है किसी भी फीमेल के साथ मैटिंग कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कोई भी किसी के साथ कर सकता है और उन लोग के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल डॉग्स एंड सम फिशेस। नेक्स्ट इज मोनोगैमस। मोनोगैमस इफ डेवलप ए पेयर बॉन्ड, इन लोग के बीच में पेयर बॉन्ड होता है यानी कि दे आर लव कपल्स। मोनोगैमी लास्ट सिंगल ब्रीडिंग सीजन और ए होल लाइफ। तो उन लोग के बीच जो रिश्ता रहता है, जो उन लोग लव कपल होते हैं, वो या तो होल लाइफ के लिए होते हैं या फिर सिंगल ब्रीडिंग सीजन के लिए होते हैं। मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। उन लोग एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं और उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द मोनोगैमस। Both sexes participate in parental care of their offspring. मतलब भाई हम दोनों का बच्चा है तो हम दोनों ही ख्याल रखेंगे। सो इन मोनोगैमस सिर्फ ये मेल इसी फीमेल के साथ मैटिंग करेगा, ये मेल इसी के साथ करेगा और ये मेल इसी के साथ करेगा। मतलब सिर्फ सिंगल एक बॉन्ड है, ओनली वन बॉन्ड इज देयर इन बिटवीन। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है जो कि प्रोमिसेस में होता था। ये सिर्फ मोनोगैमस है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हंस। हंस यानी कि स्वान। इन लोग का जो कपल होते हैं, मोनोगैमस जो होते हैं, इनका जो ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, इन लोग का पूरा होल लाइफ, इन लोग का होल लाइफ एक ही इन लोग कपल्स में रहता है और अगर एक मर जाए तो दूसरा डिप्रेशन में मर जाता है। नेक्स्ट इज वुल्फ। वुल्फ इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पर फीमेल और मेल होल लाइफ के लिए साथ रहते हैं और अगर मेल इनका जो पार्टनर है, अगर मेल की डेथ हो जाती है तो फीमेल एक नया मेल ढूंढ लेती है, लेकिन अगर फीमेल का मौत हो जाता है तो मेल नया पार्टनर नहीं ढूंढता बल्कि वो भी वही मर जाता है। मतलब यहाँ पर फीमेल जो है वो बेवफा कह सकते हो, बेवफा भी नहीं कह सकते, इट्स ए नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इन द बैट्समैन प्रिंसिपल वी हैव स्टडी द सिंगल ओवा इज मोर कॉस्टली देन ए सिंगल स्पर्म। Next example is owl and one of the best example is sea horse. Sea horse भी पूरे whole life के लिए होते हैं पार्टनर और अगर एक मर जाए तो दूसरा वो भी डिप्रेशन में मर जाता है। और इन लोग के बीच में वैसे ही जो ह्यूमंस में होता है, एक्चुअली ह्यूमंस आर आल्सो मोनोगैमस। तो ह्यूमंस की तरह इन लोग के बीच भी मतलब इमोशनल अटैचमेंट रहता है और अगर दूसरा पार्टनर किसी और पार्टनर को देख भी रहा होता है तो भी इन लोग को जलन होती है। मतलब उन लोग के बीच प्यार व्यार सब कुछ होता है एंड जेलस तो होता है और जहाँ प्यार होता है वहाँ जेलस जरूर होता है। सो यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉलीगाइनस एंड अदर इज पॉलीएंड्रस। So first, polygamous, a mating system where an individual of one sex is met with several other. मतलब यहाँ पर सिर्फ एक वन सेक्स होता है जो दूसरे काफी सारों के साथ करता है, मतलब सेवरल अदर्स के साथ करता है। अगर फीमेल को देखें तो काफी एक फीमेल काफी सारे मेल के साथ करेगी और दूसरा टाइप होता है जो कि एक मेल काफी सारे फीमेल के साथ उसकी मेटिंग होगी। First is polygynous. This represents polygynous, where one type of male is mating with several other females. One male with several females. Gynous है, इसलिए one male with several females. Male larger in size and may ornamental. यहाँ पर जो मेल होता है वो काफी ज्यादा ornamentals होते हैं और फीमेल्स वो parental care। यहाँ पर मेल का साइज भी लार्जर होता है और काफी ऑर्नामेंट होता है और फीमेल उससे उस तरीके से अट्रैक्ट होती है।
एग्जाम्पल इज दिस रेनडियर, उसका जो ये हॉर्न है ये मेल्स में होते हैं और ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं। और ये पीकॉक का है, मेल्स का है, काफी इसका विंग्स जो होता है काफी बड़े होते हैं और फीमेल के पास छोटे होते हैं। गोरिल्ला and this elephant sea snail, okay, where the males are very handsome and large in the size. Next is polyandrous. ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक फीमेल काफी सारे मेल के साथ मेटिंग करती है। One female with several males. Female is larger in size and ornamental. यहाँ पर फीमेल जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है और ऑर्नामेंटल होती है, मीन्स यहाँ पर औरत ही घर संभालती है। मेल्स को पेरेंटल केयर, यहाँ पर पापा जी पेरेंटल केयर करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो कि ये सब रेयर केस है। बट इन टूडेज जनरेशन इज ऑल इज फादर लोग ही हाउस हस्बैंड बन जा रहे हैं आजकल और औरतें हैं जो काम कर रही हैं, ऐसा भी होता है, अपना अपना चॉइस है एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, ओके। The most famous example is honey, okay. You can see the queen जो larger in size है, but जो males है यानी कि ड्रोन जो है वो smaller in size है और ये काफी ज्यादा ornamental है, देख सकते हैं ये काफी ज्यादा ornamental है as compared to male. And the worker bee do not have any sex, so this is male and this is female, okay, and this is male. Next is handicap principle. The hypothesis that exclusive ornamentation signal high genetic parity because the breeder must able to afford this energetically costly traits. मतलब जो मेल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म है जो काफी ऑर्नामेंटल्स होती है, उन लोग का सेक्सुअल सिलेक्शन ब्रीडिंग में तो हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी उन्हें एज ए पार्टनर मिल जाता है और अपना रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है उन लोग अचीव जरूर कर लेता है, लेकिन उनका जो ऑर्नामेंट्स है वो उन लोग का जो होता है वो कॉस्टली पड़ जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पिकॉक के जो पर हैं अगर वो काफी खूबसूरत हैं और फीमेल्स उसको देख के अट्रैक्ट जरूर होती हैं, बट अगर उसके पीछे शेर पड़ जाता है तो ये सब उनको जान पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट, जिसका जो हॉर्न है ये डियर का, रेन डियर का, वो पेड़ों में फंस जाने के कारण वो वही रह जाता है और वही मर जाता है। सो अगर इसके पास ये हॉर्न नहीं रहता तो आराम से शेर से बच के भाग सकता था। सो जो जितना सुंदर है वो उतना ज्यादा मुसीबत में है। एज कॉमन एग्जाम्पल, अगर बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का है, भले उससे लड़कियां काफी लाइन देती होंगी, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव लड़की जो किडनैपर है सबसे पहले वो उसको किडनैप करके ले जाएगी, मतलब अगर वो ऑर्डिनरी लड़का होता तो बहुत जल्दी उसको किडनैप नहीं भी कर सकती थी। दिस इज विल द सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज पेरेंटल केयर, बच्चों का लालन पालन। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एज any investment by the parent in an offspring for its survival, which occur before or after the birth. Parental care एक इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट्स लोगों का इन्वेस्टमेंट है अपने ऑफस्प्रिंग पर, उसके सर्वाइवर के लिए, जो कि उसके पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद ऑकर होते हैं। There are many types, no, only two types of parental care, that is direct parental care and indirect parental care. Direct parental care, that is nursing, grooming, transporting, handling with the young. And indirect parental care, acquiring and defending critical resources, building and maintaining nest or dens, defending offspring against predator, caring for pregnant or lactating female. Mainly जो डायरेक्ट पेरेंटल केयर है वो जनरली फीमेल्स ही करती है और इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर जो है वो मेल्स करता है, मतलब घर बनाना, नेस्ट बनाना और प्रीडेटर से डिफेंड करना और फीमेल का केयरिंग करना, ये सब मेल करता है। जैसे कि कह सकते हैं लड़का ही डेट पे लेके जाता है, लड़का ही पेमेंट करता है, लड़का ही घुमाता है और लड़कियां जो है उसके बदले में बस उसका बच्चों का ध्यान रखती है बाद में। एंड लड़का जो है वही बाजार लेके जाना, शॉपिंग कराना, ये सब जो है मेल्स ही करते हैं। Indirect parental care, that is nursing. This picture represent nursing. जो मदर है वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, that is nursing.
नेक्स्ट इज ग्रूमिंग. ग्रूमिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. जैसे कि एक बंदर दूसरे बंदर के बालों में जुए है जो खोज देता है. ये काफी कॉमन है, ये हम देख सकते हैं, ये ह्यूमंस में भी होता है. मम्मी हम लोग को खींच खींच के हमारे बाल से जुए निकाला करती थी बचपन में, राइट? दैट इज ग्रूमिंग. और नहाना धोना वो सब भी ग्रूमिंग में. नेक्स्ट इज हर्डलिंग विद द यंग्स, मतलब हक करके रखना अपने बच्चों को, उसी को हैंडलिंग विद द यंग्स बोलते हैं. जैसे हैंड में भी दिखाई देता है, मेनली बर्ड्स में दिखाई देता है, सब ऑर्गेनिज्म में मेनली दिखाई देता है कि बच्चे अपने माँ से लिपट के सोते हैं. दैट इज हर्डलिंग विद द यंग. So, in indirect parental care defending offspring, this picture represents the frog carrying their eggs. Because the eggs for hatching, they require the moist condition, though, so they carry their eggs on the dorsal surface in the fresh water till their hatching time will come. So here, end of the session. Thank you and God bless you all.